Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter The End of Bipolarity, and under this chapter we were discussing shock therapy, and our discussion of shock therapy was complete, and in this discussion we have seen that after the disintegration of USSR, what happened that in the 15 new countries which emerged after this disintegration of USSR, we find that in those countries there was ethnic conflict, there was tension, there was civil war like situation, because there was diversity in these countries, and the different group was in a way started a kind of secessionist movement. Like we have seen that in Russia, Chechnya and Dagestan were the two reasons which started the secessionist movement, the movement to make themselves a sovereign country. They did not want to be a part of Russia. They wanted to be an independent country, and this type of movement, जब इसके लिए कोई movement होता है उसी को हम secessionist movement कहते हैं. And likewise in other countries also, like countries of Central Asia में अगर हम देखें तो ताजिकिस्तान में भी civil war वाली situation arose करती है. Then अजरबैजान में भी जो एक particular province था, that was Nagorno-Karabakh. In that province, जो local Armenians थे, they wanted to be a part of Armenia, and for that purpose there was tension and conflict. Then in Georgia, there was demand for independence, which came from two provinces of Georgia, and this demand for independence resulted in a civil war-like situation. Then we see that in Ukraine, Kyrgyzstan, and Georgia, in all these countries there was civil war, there was violence and tension. And not only this, we see that because of this violence and tension and civil war, there was instability, and it became difficult for the ordinary citizens to deal with the situation. The government in most of these situation, the violent move of this सेशनिस्ट मूवमेंट का जो भी काम हो रहा था, जो भी सिविल वॉर हो रहा था, उसको बहुत ही बुरी तरह से क्रश किया गया गवर्नमेंट की तरफ से. एंड दिस सिचुएशन वाज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री. एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अदर कंट्रीज भी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, उनके बीच में भी आपस में भी टेंशन स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लाइक रिवर, जो कि दो कंट्री के बीच के में रिवर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो स्टार्ट होते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब कुछ काफ़ी फुल ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स था. बट यहाँ पर ये जो हम टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये अगर देखा जाए तो जो यूएसएसआर से के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो न्यू कंट्रीज, इंडिपेंडेंट कंट्रीज आए, उनमें ये प्रॉब्लम आई. यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो था ये और भी ग्रेव हो गया. द प्रॉब्लम बिकेम ग्रेव because of the involvement of the outside powers. यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन है, सेशनिस्ट मूवमेंट है, गवर्नमेंट उसको वायलेंटली सप्रेस कर रही है, सिविल वॉर चल रहा है, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन इन all these newly independent countries of erstwhile USSR. But now what was happening, a new development, that was the involvement of outside powers.
अब यहाँ पर आउटसाइड पावर्स में हम किसको देखेंगे, हु आर कंसिडर्ड एज आउटसाइड पावर्स। यहाँ पर जो आउटसाइड पावर्स है वो है यूएस, जो आउटसाइड पावर है वो है चाइना एंड रसिया। रसिया was also considered to be an outside power। तो ये जो कुछ भी टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था उसमें आउटसाइड पावर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है एंड ये प्रॉब्लम को बढ़ाता है। अब जो ये आउटसाइड पावर्स हम देख रहे हैं, यूएस, चाइना, रसिया, इन तीनों के इन्वॉल्व होने के पीछे जो रीज़न था, दैट रीज़न वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थ्री कंट्रीज। ठीक है, हर कंट्री इन्वॉल्व हो रहा है ड्यू टू सम रीज़न और दी अदर, हर किसी का रीज़न डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज ज़्यादा थे। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हुए उनके जो रिसोर्सेज थे वो वहाँ पर ज़्यादा थे। तो ये जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं इनमें जो हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स ज़्यादा थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे, पेट्रोलियम के जो रिजर्व थे वो ज़्यादा थे और उस कारण से इन रिपब्लिक्स में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है ना। और इसी कारण से यहाँ पर आउटसाइड पावर्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। बिकॉज हमने इस बात को पीछे के चैप्टर में जब हम कोल्ड वॉर कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो सुपर पावर्स होते हैं उनका एक मेन जो एम होता है वो होता है कि जो भी कंट्री रिसोर्स रिच है, खास करके अगर पेट्रोलियम रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, तो उस कंट्री को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट पे अपना कंट्रोल चाहते हैं ताकि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको वो अपने हिसाब से यूज कर सके। तो यही चीज यहाँ पर भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी होता है। सो द इंटरेस्ट ऑफ चाइना इन दिस रीजन इज फॉर ऑयल रिसोर्सेज ओनली। चाइना wants to control the oil resources of these Central Asian republics, Central Asian countries, and that is why it involves in the internal politics of these countries. And what we see that actually China had begun to settle around the borders and it started trade also. Okay. And now we see what is the interest of US, what is the reason of involvement of US in the Central Asian republics. Here we see that the reason for US involvement is different, because what we see that the location of these Central Asian countries is they are next to Russia, China, Afghanistan and Pakistan and very close to West Asia, जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, जो कि मिडिल ईस्ट है ना। अगर एशिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो दैट इज वेस्ट एशिया, बट इफ वी सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल वर्ल्ड इट इज मिडिल ईस्ट। तो ये जो वेस्ट एशिया है इसके ये पास पड़ता है लोकेशन। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है इनका जो लोकेशन है दैट इज क्लोज टू वेस्ट एशिया। और अभी इन द नेक्स्ट चैप्टर यू आर सपोज टू रीड अबाउट इट। अमेरिका पे क्या हुआ था, अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, अल कायदा की तरफ से टेररिस्ट अटैक हुआ था सितंबर 2001 में, 11 सितंबर 2001 को, जिसको 9/11 के नाम से जाना जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड दिस about this incident, 9/11, that is 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पे टेररिस्ट अटैक हुआ था बाय अल कायदा। और ये जो टेररिस्ट अटैक था इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ब्लो टू द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ अमेरिका, बिकॉज अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब वहाँ की जो सिक्योरिटी सिस्टम है इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए वहाँ पर टेररिस्ट अटैक का होना ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा फेलियर कहा जाएगा।
एंड आफ्टर दिस टेररिस्ट अटैक क्या हुआ कि अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म अनाउंस किया। ठीक है, पूरी जो दुनिया में टेररिज्म फैला हुआ था, अभी तक ये फर्स्ट एंड वी कैन से फर्स्ट एंड लास्ट, बिकॉज दूसरा भी शायद ऐसा अटैक ना हो पाए अमेरिका पे जो हुआ था 11 सितंबर 2001 का। तो ऐसा अटैक जो कि कभी अमेरिका कैन नेवर थिंक इन इट्स ड्रीम कि ऐसा भी हो सकता है। और जिस अलकायदा को, जिस तालिबान को अमेरिका ने ही बनाया था, we will read about it in the next chapter, though the complete chapter is not there in the syllabus, the US hegemony, but still these are the important points and we will discuss all these things. तो जिस अलकायदा को और जिस तालिबान को अमेरिका ने ही बनाया था, उसी तालिबान ने, उसी अलकायदा ने अमेरिका पे अटैक किया। तो इसी कारण से अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर किया और इसके जो टारगेट थे वो वही था, तालिबान एंड अलकायदा। तो अब तालिबान का रूल उस समय कहाँ था? अफगानिस्तान में तालिबान का रजीम था। तालिबान वाज रूलिंग अफगानिस्तान एट दैट टाइम। और अलकायदा का भी जो ठिकाना था वो वेस्ट एशियन कंट्री जो है उन्हीं में था। वेस्ट एशिया मतलब वही जिसको हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, है ना। तो अब अमेरिका ने जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर किया, इसके टारगेट पे अलकायदा था, इसके टारगेट पे तालिबान था। तो अब उनको, उनके साथ लड़ने के लिए इसको बेस चाहिए। कैसे लड़ेगा? कोई टेरिटरी चाहिए, मिलिट्री बेस चाहिए। तो अमेरिका वांट्स टू इन्वॉल्व इन दीज एरियाज, इन दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सो दैट कि उनकी टेरिटरी को वो मिलिट्री बेस की तरह यूज कर सके, है ना। और ये किया भी अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के अटैक के बाद अमेरिका ने मिलिट्री बेस की तरह यूज किया इस रीजन को। और इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज की गवर्नमेंट को उसने पैसे दे करके, पे करके बेसिस हायर किए एंड इस बात का भी परमिशन लिया कि जो अमेरिका के एयरप्लेन्स हैं वो उनकी टेरिटरी के ऊपर फ्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर। जैसे उसके बाद 2003 में अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था। अभी वो पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको, बहुत डिटेल में पढ़नी है। 2003 में अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था और इसी समय अफगानिस्तान के साथ भी काफी लंबी लड़ाई अमेरिका की चली। अफगानिस्तान में जो तालिबान का रेजिम था, तो ये लड़ाई जो जब चल रही थी तो उस समय अमेरिका से जो एयरप्लेन अमेरिका के आएंगे वो इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के एयर टेरिटरी को यूज करने के का परमिशन अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिया इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये मेन रीजन था अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का। मेन रीजन था कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके अगेंस्ट जो उसने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर किया, उसके लिए उसने जो टारगेट किया तालिबान को और अल कायदा को, उनसे लड़ाई के लिए उसने इराक पर अटैक किया 2003 में उस पर। और इसी में काफी लंबे समय तक अफगानिस्तान के साथ भी उसकी लड़ाई चली। तो इसमें उसको मिलिट्री बेस चाहिए था, इसमें उसको वो टेरिटरी चाहिए थी, एयर टेरिटरी को भी वो यूज करना चाहता था ताकि वो अपने उसके जो प्लेन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, वो उस इन कंट्रीज के एयर टेरिटरी को यूज करते हुए फ्लाई कर सके। तो यूएस के इन्वॉल्वमेंट का ये रीजन है। अब अगर हम रसिया को देखते हैं तो रसिया जो है वो इन कंट्रीज को क्या मानता है? रसिया कंसिडर दीज कंट्रीज एज नियर अब्रॉड। जो बिल्कुल पास में, अब्रॉड तो है लेकिन बिल्कुल पास में है ना। तो दीज आर कंसिडर्ड एज नियर अब्रॉड बाय रसिया एंड दैट इज द रीजन रसिया वांट्स कि ये जो है ये कंट्रीज पर उनका रसिया का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये लोकेशन जो है इनकी रसिया के पास है ना। तो रसिया इन्हें नियर अब्रॉड मानता है और उनका यही बिलीव करता है कि दे शुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रसिया। तो दैट इज द रीजन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज आउटसाइड पावर्स इन
the Central Asian countries. Okay, and now we will see that these were the happenings inside the इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ erstwhile यूएसएसआर. जो अभी तक यूएसएसआर था 25 दिसंबर 1991 के पहले तक जो यूएसएसआर एग्जिस्ट कर रहा था, उस यूएसएसआर के अंदर 15 रिपब्लिक्स थे. और इन 15 रिपब्लिक्स ये 15 रिपब्लिक्स जो थे वो 25 दिसंबर 1991 के बाद पूरी तरह से 15 एकदम फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाते हैं, है ना, सॉवरेन कंट्रीज बन जाते हैं. तो अब हम क्या देखते हैं कि अभी तक हमने जो भी टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कस किया, जो भी शॉक थेरेपी डिस्कस किया, एवरीथिंग वाज अबाउट these newly independent countries of erstwhile USSR. ठीक है. अब हम क्या देखेंगे कि जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, दैट डिसइंटीग्रेशन हैज consequences on the countries of Eastern Europe as well. As we know, during the Cold War era, the whole Europe was divided into two parts, Western Europe and Eastern Europe. Western Europe was with America and Eastern Europe was with USSR. है ना? We have discussed about it. And now what we see कि the USSR is disintegrated. USSR is not existing, and with the disintegration of USSR, we can say the whole Soviet bloc was disintegrated. And there was consequence, there was impact on the countries of ईस्टर्न यूरोप एज वेल. और इसमें दो कंट्रीज थे जिसपे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ. एक है चेकोस्लोवाकिया एंड द नेक्स्ट इज यूगोस्लाविया. दीज आर द टू कंट्रीज. तो चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया ये दो कंट्रीज हैं. एंड यूगोस्लाविया. Here what we see that Czechoslovakia, this country was, because of disintegration of USSR, this country was also disintegrated, but the disintegration of Czechoslovakia was peaceful. Peacefully, it was divided into two parts. One was Czech Republic, okay, and another was Slovakia. Czech और स्लोवाकिया में ये डिवाइड हो जाता है, पीसफुली स्प्लिट हो जाता है. ओके, और इस तरह से दो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाते हैं. एक को हम चेक रिपब्लिक कहते हैं, और दूसरी जो है वो स्लोवाकिया है. And now we see what happened in Yugoslavia. Yugoslavia was also disintegrated with the disintegration of USSR, but the disintegration of Yugoslavia was very, very painful because severe conflict took place in this Yugoslavia. और ये जो यूगोस्लाविया थी वो बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ती है आफ्टर दिस डिसइंटीग्रेशन, लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये सब जो है ये अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करते हैं. और इस तरह से जो ये डिवीज़न ऑफ यूगोस्लाविया होता है ये वायलेंस से भरा हुआ था. काफ़ी लोगों की जान गई इसमें. और जो सर्ब्स थे उन्होंने अपोज किया, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से यूगोस्लाविया का डिवीज़न हो. दे अपोज्ड दिस
disintegration of Yugoslavia, and we see that बहुत ही लार्ज स्केल पे मैसेकर होता है नॉन सर्ब्स का, और ये सब कुछ जो है वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो सर्ब्स और नॉन सर्ब्स के बीच में जो कुछ भी होता है, इसमें जो नॉन सर्ब्स बोस्नियंस होते हैं उनका मैसेकर काफ़ी लार्ज स्केल पे मैसेकर्स होता है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें नाटो का इंटरवेंशन हो जाता है, वही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज अ वेस्टर्न अलायंस, है ना। तो ये नाटो जो है वो इसमें उसको इंटरवीन करना पड़ता है, बिकॉज काफ़ी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन मैसेकर हो रहे थे इस कारण से। तो नाटो का इंटरफेरेंस होता है, फिर यूगोस्लाविया पे बॉम्बिंग होती है और इंटर एथनिक सिविल वॉर वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली ये होता है कि यूगोस्लाविया जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यूगोस्लाविया के 6 पार्ट जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। इसके जो 6 पार्ट्स थे उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स थे जो अभी आज के समय में इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, है ना। एक हो गया बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, बोस्निया एंड क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, and sixth one is Slovenia। तो आज की डेट में यूगोस्लाविया इज नॉट एग्जिस्टिंग, यूगोस्लाविया इज नॉट अ कंट्री। यूगोस्लाविया की जगह अब ये 6 कंट्रीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो दिस कैन ऑल्सो बी said to be a consequence, one of the consequences of disintegration of USSR. Okay, so actually now you are supposed to read this topic is complete, है ना। We have completed this topic and now we move to another topic. So now we move to new topic. The topic is Arab Spring. Actually, your syllabus is not the same as it used to be earlier. Last year also there was change in the syllabus, and this year also there are changes. So this topic is newly added. It's a newly added topic, okay. It is not there in your book. This topic is not there in your book. You will find that PDF of syllabus, है ना। You have that PDF of syllabus. तो वो जो syllabus का जो PDF है उसमें रेफरेंस मटेरियल दिए हुए हैं। जो भी न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं उनके कुछ मटेरियल सिलेबस में ही दिया है CBSE ने, ठीक है। तो उसी को वही मेन कंटेंट है हमारा। आई विल एक्सप्लेन यू, है ना। द कंटेंट इज दैट which is given in the reference material in the PDF of the revised syllabus, and this I am going to explain you what do we mean by Arab Spring. Arab Spring, first of all you must know Arab. अगर हम अरब वर्ल्ड कह रहे हैं तो उससे हम कौन से कंट्रीज को रेफर कर रहे हैं? वी आर रेफरिंग
विच कंट्रीज? इफ वी आर सेइंग अरब, अरब मीन्स जो मिडिल ईस्ट है, जो वेस्ट एशिया है या जो वर्ल्ड का जो मिडिल ईस्ट है, दैट इज कंसिडर्ड एज अरब वर्ल्ड. ठीक है. अब ये जो अरब वर्ल्ड है, ये सारे जो है वो मुस्लिम कंट्रीज, एंड दे ऑलमोस्ट ऑफ देम आर रिलीजियस कंट्रीज, दे आर मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज. और इन कंट्रीज की जो एक अगर हम कॉमन फीचर्स कुछ देखें तो ये है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है. इस पूरे रीजन, पूरे मिडिल ईस्ट में ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है. और जो ऑयल रिजर्व ज़्यादा है, दैट इज द मेन रीजन फॉर द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन दीज एरियाज. इस रीजन में शुरू से, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तब से ये रीजन जो है ये कभी भी यहाँ पर पीस नहीं रही. ये हमेशा टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में बना रहा. द मेन रीजन इज ऑयल रिजर्व्स. हाँ, तो ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. और ये जो कंट्रीज यहाँ पर हैं वो काफ़ी रिच कंट्रीज हैं. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, देन कतार है, कुवैत है. दीज आर द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि ऑयल रिजर्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. तो इकोनॉमिकली तो ये बहुत स्ट्रांग है, बट यहाँ ये दीज कंट्रीज आर नॉट कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज. Why? They are, if we see only economic sphere, if we see only economic in the economic context, they are very rich countries. They are among the richest countries of the world. But still we say that these countries are not developed because political development नहीं हुआ है वहाँ पर. वहाँ पर आज भी इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है. एंड दैट इज द रीजन कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ मॉडर्न एरा, these countries are not experiencing any kind of modern ideology, and this is the reason they are considered as they are not considered as developed countries. ठीक है. तो यहाँ पर इन कंट्रीज में मोस्टली डिस्पोटिक रूल्स ही रहा, ऑथोरिटेरियन रूल्स ही रहा. ठीक है. तो ये है अरब वर्ल्ड. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर 2009 वी कैन से, क्योंकि 21st सेंचुरी जब स्टार्ट होती है, उसके स्टार्टिंग के ही हम कहेंगे कि विद इन अ डिकेड वेरी ड्रास्टिक चेंज कम्स इन दीज कंट्रीज. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी के आने के साथ साथ अरब वर्ल्ड में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं. एंड जो ड्रास्टिक चेंज आता है वो यही है कि जो अभी तक का जो डेस्पोटिक रूल था, जो अथॉरिटेरियन रूल था, अनअकाउंटेबल रूल था, दैट चेंजेस टू डेमोक्रेटिक रूल. एंड दिस चेंज जो डेस्पोटिक से डेमोक्रेटिक हो रहा है, जो अनअकाउंटेबल से अकाउंटेबल हो रहा है, जो अथॉरिटेरियन से जो पॉपुलर गवर्नमेंट में जो चेंज आया, दैट इज नोन एज स्प्रिंग. क्यों हम इसको स्प्रिंग कह रहे हैं? डेमोक्रेसी का आना इज स्प्रिंग. डेमोक्रेटिक रूल का स्टार्ट होना अरेबियन कंट्रीज में, दैट इज स्प्रिंग. बिकॉज अगर हम सीजन्स को देखें, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये 4 मेन सीजन्स होते हैं ना. सबसे प्लेजेंट सीजन कौन सा होता है? सबसे प्लेजेंट सीजन होता है स्प्रिंग, जिसमें न तो ज्यादा ठंडक होती है, न ज्यादा गर्मी होती है. बहुत ही, जिसको हम कहेंगे कि बिल्कुल प्लेजर हम फील करते हैं, है ना. तो डेमोक्रेसी इज जस्ट लाइक दैट. डेमोक्रेसी भी उतना ही प्लेजेंट होता है. जैसे स्प्रिंग प्लेजेंट होता है ना, वैसे डेमोक्रेसी प्लेजेंट होता है. हर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज डेमोक्रेसी. तो द बेस्ट सीजन इज स्प्रिंग, द बेस्ट गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. दैट इज व्हाई इट इज कंपेयर्ड विथ द स्प्रिंग सीजन. ठीक है. तो 21st सेंचुरी में
अरब कंट्रीज में जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, डेमोक्रेसी का जो स्टैब्लिशमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो सेटअप होना स्टार्टिंग होती है, दैट इज नोन एज अरब स्प्रिंग। इसी को हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये अरब स्प्रिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये अरब स्प्रिंग जो है वो ट्यूनीशिया से स्टार्ट होता है 2009 में, इन द ईयर 2019 फ्रॉम ट्यूनीशिया। ठीक है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। We will discuss all these things in the next class.